Hello everyone, welcome to the day 3 of my 100 video challenge. This is Rohit Menon, former visa officer, New Zealand Embassy, Delhi branch. Today I'm going to continue with the second part of my previous video, which was about the reason for the decline of the Canadian visitor visa application or a tourist visa application or a family visit visa application. Right? So guys, I'm going to keep this conversation in Hindi and in English because a lot of my applicants, a lot of my followers, they have made request to keep the conversation in both the language as a mix because we have some followers in South India also and they don't understand Hindi at all. So I'm going to keep the conversation in both the languages. Before I start with the second part of the video, please do subscribe to this video channel and follow the playlist, especially of these 100 videos, because these 100 videos will be bringing a lot of information which is going to really help you and others, right? So let's start with the points that we discussed earlier. Two major reasons for declining of a Canadian visitor visa application. Let us start with number one reason. Pehla reason tha consistent purpose of visit. So guys, when we talk about the consistent purpose of visit, it is not just, you are saying that, I'm going for tourism. These are my hotels. These are booked and these are my travel itineraries. And this is my confirmed flight ticket. It is not just the purpose of visit. Purpose of visit is connected to all the other things, other aspects also, which is basically, for example, you tell them that you are going to visit Canada for the purpose of tourism and you will be showing your itinerary, your confirmed hotel tickets and your bookings. Along with that, your intent is always, important to be shown as your previous travel history. आपने पहले तो कहीं ट्रैवल किया है कि नहीं, किसी भी कंट्री में पहले ट्रैवल किया है, वहां पे जाके आप वापस अपने टाइम से विद इन द वीजा कंडीशंस वापस आए हो. अगर ये सब चीजें आप मीट कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो लाइक शोइंग एन इंटेंट कि अगर मैंने यूके में या ऑस्ट्रेलिया में या किसी और कंट्री में जाके अगर मैं वापस आ गया हूं, तो why would I not return from Canada? So this is also a consistent purpose of visit. It's the intent. It's not just the reason. You guys try to understand. Reason समझने की कोशिश करो. रीजन तो आप बता ही रहे हो कि आप घूमने जा रहे हो या फिर आप फैमिली विजिट के लिए जा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप बताओगे कि ये कंसिस्टेंसी है कि मेरे पास पहले भी वीजा रह चुके हैं. अगर आपने पहले किसी बड़ी कंट्री में ट्रैवल किया है तो मैं वहां जाके वापस आ गया हूं, तो व्हाई वुड आई नॉट कम बैक. दिस इज वन पॉइंट. इसी के साथ अपनी कंसिस्टेंसी को प्रूव करने के लिए आप अपने फैमिली टाइज भी दिखाते हो, अपने सोशल टाइज भी दिखाते हो. इंडिया में आप ये बता रहे हो कि आपके पेरेंट्स हैं या आपके इन लॉज हैं जो आपके साथ रहते हैं, राइट, और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, मामा, चाचा, बुआ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कजन्स, ये सब हैं, तो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है. इन सब के लिए वापस आना. तो जो आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स जो इंडिया में हैं, जो आपके साथ नहीं जा रहे हैं, मे बी इट्स जस्ट वन ऑफ योर किड इज नॉट ट्रैवलिंग, उनका आईडी प्रूफ और उनके डॉक्यूमेंट्स आप लगाओ दैट दिस किड और दिस पर्सन और दिस फैमिली मेंबर इज स्टेइंग बैक, सो वी हैव टू रिटर्न फॉर दिस. सो इसमें फाइनेंशियल, इसमें हमारा सोशल इंसेंटिव भी आ जाता है कि आप वापस इनके लिए आ रहे हो. अगेन दैट इज ऑल्सो अ कंसिस्टेंट पर्पस, कि पर्पस आपका सिर्फ विजिटिंग का है, उसके बाद आपने अपनी फैमिली के लिए वापस आना है. आप पहले ट्रैवल कर चुके हो, इसलिए आप इस बार भी आप वापस नॉर्मली जैसे आप पहले ट्रैवल करते हो वैसे आप वापस आ जाओगे, राइट. इसके साथ साथ आप फाइनेंसेस में अपनी प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स दिखाते हो, उसमें भी आप बताते हो कि इन सब प्रॉपर्टीज के लिए या एसेट्स के लिए मुझे वापस इंडिया आना ही होगा. इन सबको छोड़ के व्हाई वुड आई नॉट कम बैक फ्रॉम कैनेडा फॉर माई प्रॉपर्टीज एंड फॉर माई एसेट्स दैट इज देयर इन इंडिया, राइट. इसी के पार्ट में द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिक्लाइन मोस्टली दैट यू सी ऑन द डिक्लाइन लेटर इज दैट योर फाइनेंशियल एसेट्स एंड इनकम रिसोर्सेस आर नॉट available. So when they say that it is not available, probably somewhere in your application you have not shown or demonstrated the documents properly. When you show your property, what we ask our clients to attach is, we ask them to attach the CA report. Property के documents लगाने की जरूरत नहीं है. They hardly understand your property documents. Sale deed, ये सब उनको समझ में नहीं आता. आप CA सर्टिफिकेट लगाओ, उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी की अपनी नेटवर्थ को बताओ कि आपकी नेटवर्थ
1 करोड़ की है, 2 करोड़ की है. ऑल्सो मेंशन द कनेडियन डॉलर इक्विवेलेंस. लेट्स से अगर आपकी नेटवर्थ 2 करोड़ की है, so mention that my INR, my net worth in India is including all these properties and jewelries and all these things as per the CA report is, let's say for example 2 crore rupees, right, which is equivalent to XYZ Canadian dollars. उसको आप उस रेट, उस दिन के रेट में उसको वैल्यू करके उसमें आप ब्रैकेट में इक्विवेलेंस डाल दो. एंड मेक श्योर यू हाईलाइट एंड लेबल एंड टेल देम दैट इस प्रॉपर्टी के लिए तो मुझे आना ही है. एंड यू ऑल्सो शो द फंड्स. बैंक स्टेटमेंट दिखाओ. इन योर लेटर ऑफ इंटेंट गिव कैलकुलेशन अबाउट योर ट्रिप एक्सपेंसेस. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 बंदे जा रहे हो, आपकी 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए की, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आपकी इतने लाख रुपए की टिकट्स आ रही है, राइट. तो टिकट की कॉस्ट आपकी ये होगी. आप वहां पे होटल्स में रहोगे, उसमें आपका एवरेज कॉस्ट 5-6 दिन 7 दिन 10 दिन का 50,000 है, 70,000 है, लाख रुपए है पर डे के हिसाब से, वट एवर यू मेंशन दैट. एंड यू से कि मेरा एवरेज कॉस्ट पूरे ट्रिप का 15 दिन का 20 दिन का इट इज समवेयर क्लोज टू 4 लाख 5 लाख रुपीज. एंड आई हैव 7-8 lakh 10 lakh rupees in my bank accounts, in savings, in FDs, and in the form of assets. So you mention that clearly, demonstrate that, और आपको जगह जगह पे बताना पड़ेगा. You have to tell them at various places. It's not that कि आपने LOI में लिख दिया और आपने कहीं किसी लेटर में लिख दिया. आप जगह जगह में बताओ कि कहाँ किधर वीजा ऑफिसर के किस डॉक्यूमेंट में नजर जाती है और वो समझ पाता है आपके एसेट्स को और आपके पर्पस को. ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है. प्लस जो आप लेटर लगाते हो इनविटेशन का या स्पॉन्सरशिप का, जो आपको बुला रहा है वहां से, उसमें भी आप मेंशन करो. इन केस अगर ट्रैवल है, टूरिज्म है, होटल बुकिंग्स हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में आप लेबल करो कि पर्पस बड़ा क्लियर है, घूमना है, राइट. अगर कोई इन्वाइटी है, कोई रिलेटिव है, तो बताओ कि पर्पस बिल्कुल क्लियर है, मुझे सिर्फ रिलेटिव से मिलना है, कुछ टाइम स्पेंड करना है. अगर आप उसे काफी टाइम से नहीं मिले हो, यू कैन मेंशन द ईयर्स दैट यू हैव नॉट मेट हिम फॉर सो मेनी ईयर्स और फॉर सो मेनी मंथ्स एंड यू लाइक टू स्पेंड सम टाइम एंड कम बैक टू योर होम कंट्री ऑन टाइम. सो अगेन इफ यू डेमोन्स्ट्रेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन in combination together, then you have a high chance of getting an approval, right? So I hope this information was valuable to you. So like I said, if you like the video, please like, comment on the video with more suggestions on what upcoming videos for which country information you want. जो आप comment डालोगे उस हिसाब से, उस information के हिसाब से I will make a new video. And subscribe, share it with others. Don't just keep this benefit from a visa officer to yourself. Share it with others so that others also benefit that. So thank you so much. Keep watching. This is Rohit Menon, ex-visa officer, signing off.